Hi everyone, my name is Jyoti and I have recently graduated from NIT Jamshedpur. That is, I belong to the batch of 2026 and I have started a video series on NIT Jamshedpur because lately I was receiving a bunch of queries related to NIT Jamshedpur, its placements, its faculty, the culture here and many more things. So I thought why not answer those queries in a video format so that more people could benefit from it. The first video of that particular series is out right now, where I have shared my honest opinion on NIT Jamshedpur after spending 4 years there, and it covers all the major segments which could have been important from college life perspective, such as placements, faculty, clubs, the campus life, infrastructure, and many more things. So do check it out. I will share the link of that video in the description below. And without any further ado, let's start with today's video. So today's video is purely dedicated to my branch, which is production and industrial engineering, and it is going to be a very important plus informative video because there is not much information available on the internet about it. At least when I was opting this particular branch, there was not a single YouTube video available which could have clarified my doubts regarding the placements, future prospects, and the course curriculum. The only thing that was available regarding this branch was that it is a sub branch of mechanical engineering, which after spending 4 years studying, I can confirm that it is not at all true. There is so much more to this branch, and we'll cover all those things in this video. We'll start by discussing why did I specifically choose this branch over metallurgy and civil. Then what is the course curriculum that is followed here by the Department of PI, the placements that occurred this year for production and industrial engineering, and the future prospects. So फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डिड आई चूज़ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. तो इसके अलावा मेरे को मेटलर्जी और सिविल मिल रहा था. सिविल मेरे को लॉन्ग शॉट में मिलता, CSAB में मे बी, बट मेटलर्जी मेरे को प्रोडक्शन से पहले मिल जा रहा था और मैंने प्रायोरिटी उल्टी कर दी. मैंने प्रोडक्शन को ऊपर रख दिया बिकॉज मेटलर्जी का जब मैंने कोर्स करिकुलम देखा, कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा इट इज़ प्रिटी मच अ डिटेल वर्जन ऑफ द केमिस्ट्री वी स्टडीड इन 11th एंड 12th. तो जो चीज़ मेरे से 11th एंड 12th में ढंग से नहीं हुई, उसे मैं 4 साल और स्ट्रेच करके क्यों पढ़ना चाहूँगी. एंड ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वॉज फुल ऑफ न्यू एंड वे कूलर सब्जेक्ट्स. उसमें तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, देन ऑपरेशन, रिसर्च, बिजनेस स्टैट, सप्लाई चेन. और सबसे सही बात यह है कि MBA में ये सारी चीज़ें कवर की जाती है ना मच मोर डिटेल वे ऑब्वियसली, बट तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाता है विच मेक्स इट इवन मोर कूलर. तो करिकुलम वाइज मेरा चॉइस ऑब्वियस था, बट टू बी सेफ मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी चेक करे क्योंकि कभी कभार कूल चीज़ों की अहमियत नहीं होती है, बट लकीली यहाँ थी. प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो स्टैट्स थे, प्लेसमेंट स्टैट्स, वो बाकी सारे कोर ब्रांचेस इवन मैकेनिकल, मेटा, सिविल तीनों के आसपास ही थे, नीचे नहीं थे, सेम थे, कुछ से ज़्यादा भी थे. तो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ NIT जमशेदपुर. सो मूविंग ऑन टू द कोर्स करिकुलम, तो मैं पाई और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगी, तो सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. So talking about the course curriculum, we will not discuss anything about the first year's curriculum because it is exactly the same for all the branches. उसमें हमें 11th और 12th का recap मिलता है और जो भी branches का basic subject होता है वो सारे branches को पढ़ाया जाता है. So there is nothing to discuss about. तो we'll straight away dive into the second year's curriculum and I'll attach the image here so that you guys can refer to it side by side. हियर इज़ द सेकेंड ईयर करिकुलम. इसमें मेजरली हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एंड दिस इज़ प्रिटी मच वाई हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब ब्रांच बोला जाता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट टू नो कि हमें एक सेपरेट ब्रांच बनाया क्यों गया. तो इन सेकेंड ईयर वी कवर सब्जेक्ट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 and 2, मेट्रोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, थर्मोडाइनमिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स. ये सारे जो सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और इसमें हमें 11th और 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बेसिक्स लगता है. अगेन वाई आई हेट इट. फिर उसके बाद जो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, बट ये न्यू सब्जेक्ट्स, इसमें तुम्हें कोई प्री रेक्विजिट नहीं चाहिए होती 11th और 12th की.
देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये जो है ये ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है. और फिर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन दी 4th सेमेस्टर, ये इंटीग्रल पार्ट है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का. प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तुम्हें बेसिकली बताते हैं हाउ टू डिज़ाइन द लेआउट ऑफ एन इंडस्ट्री और अ plant so that the workflow becomes more smooth or efficient. Then we'll move on to third year's course curriculum. इसमें हम अपने कोर के सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, विच इज़ कैड कैम. इसमें ये मैकेनिकल का भी थोड़ा सब्जेक्ट हो जाता है. इट इज़ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली मशीन के पार्ट्स. Then supply chain management. Supply chain management is basically everything in between ordering a product and receiving that product. तो उसके बीच में जितने भी प्रोसेसेस, एंटिटीज़, जो भी डिसीजंस है उसके रिलेटेड सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है. एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैं इसी डोमेन में प्लेस्ड हूँ अभी. देन वी कम टू प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसमें तुम्हें अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके डेवलपमेंट में क्या क्या फेजेस होंगे, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, फिर तुम उसकी लॉन्च का कैसे प्लान करोगे, फिर से क्या फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन लेना होगा, ये सब कवर किया जाता है इस सब्जेक्ट में. देन ऑपरेशन रिसर्च इज़ basically a subject that helps us to use mathematical equations to solve business problems. इसमें तुम्हें कोई ऑर्डर की शेड्यूलिंग कब करनी है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें इसमें सॉल्व हो जाती है. देन प्रोफेशनल इलेक्टिव में ये होता है कि तुम्हें ऑप्शंस दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स के और तुम्हें उसमें से कोई एक या दो चूज़ करने होते हैं. प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 में हमें एक चूज़ करना था. ये सारे ऑप्शंस है उसमें से. मैंने इसमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चूज़ करा था. उसके कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है, मॉडल्स एंड मेथड्स होते हैं. ये सब किसी प्रोसेस का या फिर प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करना होता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट. देन पेस्टल एनालिसिस, यू कैन सर्च इट ऑन द वेब, यू विल गेट अ क्लियरर पिक्चर अबाउट इट. तो ये उसके ऊपर था. देन फंडामेंटल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगेन अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. ये भी सारे ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है. कमिंग टू द 6th सेमेस्टर, अगेन इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो लेटेस्ट प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, विच आर नॉट ट्रेडिशनल, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 and 2 में था, उसके अलावा. देन मेटल फॉर्मिंग, डिज़ाइन और प्रोडक्शन टूलिंग. देन अगेन इलेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि अपने कोर डिपार्टमेंट पाई के सब्जेक्ट्स होते हैं. प्रोफेशनल इलेक्टिव 2 में अपने पास 2 and 3 में ये सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें मैंने लिया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वर्क सिस्टम डिज़ाइन एंड एर्गोनॉमिक्स. बिकॉज स्टार्टिंग से मेरा क्लियर था, मेरे को कोर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. जो भी चीज़ मैकेनिकल से रिलेटेड उस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं इंडस्ट्रियल साइड ऑफ थिंग्स में फोकस कर रही थी, विच वॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Project management is the second part of operation research in a certain way. उसमें तुम्हें बताया जाता है कि कौन सा मेथड या फिर प्रोसेस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट एफिशिएंट टू बी फॉलोड. देन वर्क सिस्टम डिज़ाइन एंड एर्गोनॉमिक्स में ये भी वही है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कौन सी है, ये कैसे डिसाइड करें. Then ergonomics is more on the customer satisfaction side of the things, कि अगर कोई प्रोडक्ट तुम बनाते हो, लॉन्च करते हो, तो वो कितना सेफ़ है यूज़ करने के लिए और वो कितना हैंडी है, ये सब ergonomics में कवर होता है. देन ओपन इलेक्टिव में मैंने बिजनेस स्टैट्स यूज़ करा था, बिकॉज देन आई वॉज इंटरेस्टेड इन द डेटा एनालिटिक्स डोमेन, तो उसके लिए हेल्प करता. दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. कमिंग टू द 4th ईयर, 7th सेमेस्टर में थोड़े एडवांस सब्जेक्ट्स थे, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग. देन 2 इलेक्टिव्स थे जिसमें मैंने वैल्यू इंजीनियरिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग चूज़ करा था. लीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन से रिलेटेड है. इट इज़ मोस्टली अबाउट मिनिमाइजिंग वेस्ट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस, और तुम वेस्ट मिनिमाइज करोगे तो प्रोसेस खुद ब खुद एफिशिएंट हो जाएगा, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज़ व्हाट दिस सब्जेक्ट डील्स विद. और वैल्यू इंजीनियरिंग में तुम किसी चीज़ में वैल्यू ऐड कैसे करोगे, वही है ये. और अगर तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स चाहिए तो टेक अ स्नैपशॉट एंड गूगल इट आउट. देन
ओपन इलेक्टिव में मैंने लिया था इंडस्ट्री 4.0 बिकॉज लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. मैंने कोर पूरा स्किप कर दिया था पूरे 3 सालों में. तो लास्ट में मैंने इंडस्ट्री 4.0 ले ही लिया. फिर देन 8th सेमेस्टर में विच इज़ आर लास्ट सेमेस्टर, हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग आइदर वी हैव टू डू अ 6 months इंटर्नशिप, जो कि 7th सेमेस्टर से हमारी प्लेसमेंट चालू हो जाती है. तो जो भी कंपनीज हायर करने को आती है वो आइदर फुल टाइम हायर करती है, जो कि 8th सेमेस्टर के बाद हायर करेगी, या फिर 6 months प्लस PPO वाला सीन होता है. तो जो 6 months होती है वो 8th सेमेस्टर में हमें करना होता है. तो आइदर वी हैव टू डू दैट, और अगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है देन वी हैव टू डू अ मेजर प्रोजेक्ट अंडर अ प्रोफेसर एट NIT जमशेदपुर. और उसके अलावा हमें NPTEL से 2 सब्जेक्ट रजिस्टर करने पड़ते हैं. हमें उसमें भी चॉइस मिलती है, काइंड ऑफ इलेक्टिव जैसा ही है, और हमें अपने अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट चूज़ करनी पड़ती है. मैंने एडवांस फाइनेंशियल एनालिटिक्स चूज़ करा था और ई-बिज़नेस चूज़ करा था. सो इट वॉज ऑल अबाउट द कोर्स करिकुलम of production and industrial engineering. Moving on to the placement of this year PI, I will give you a brief synopsis कि किस किस सेक्टर में हायरिंग हुई थी, हमारा एवरेज पैकेज वगैरह क्या क्या था, और थोड़े टॉप रिक्रूटर्स क्या क्या थे. तो हमारी जो ब्रांच की स्ट्रेंथ है वो 60 के अराउंड होती है, बट हमारे बैच की 57 थी. तो उसमें से 25% ऑफ द पीपल वेंट इनटू द डेटा डोमेन, 9% ऑफ देम वर प्लेस्ड इन SD, 13% ऑफ देम वर इन कंसल्टिंग, 25% ऑफ देम वर इन सप्लाई चेन. मैं भी इसी में आती हूँ. देन एडटेक में 6% लोग गए थे और कोर में 15%. बाकी जो 7% बच गए वो उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा था, और कुछ के लिए कंपनीज अभी भी आ ही रही है. तो इट इज़ ऑन गोइंग. हमारी ब्रांच की जो मीडियन CTC है अंटिल नाउ इट इज़ 8 LPA एंड एवरेज CTC इज़ अराउंड 9.02. देन द टॉप रिक्रूटर्स वुड बी ईटन, फ्लिपकार्ट, Mamaearth, JSW, वोल्टास, BlackRock एंड Accenture. BlackRock Accenture जो है वो SD के लिए आई थी, JSW एंड वोल्टास वर फॉर कोर, और Mamaearth was for data analytics and Eaton and Flipkart for supply chain. So this was the placement stats. Talking about the future prospects of production and industrial engineering, तो हायर स्टडीज़ में मैक्सिमम लोग कोर ब्रांच लेके गेट लिखते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए PSUs में, बट अगर तुम कंपेयर करो मैकेनिकल, सिविल और मेटलर्जी से, तो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लेस. तो बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो मैकेनिकल के थ्रू भी गेट लिखते हैं, बट दैट इज़ जस्ट एक्स्ट्रा मेहनत. तो अगर तुम गेट में इंटरेस्टेड हो तो आप मूव करके दूसरे कोर ब्रांचेस को ले लो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो. अदरवाइज़ तुम्हें अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, पहले से डिसाइडेड नहीं है, तो आई वुड से कि MBA कर लो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है भाई प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ MBA. तुम वहाँ जाके पढ़ोगे तो लगेगा मैक्सिमम चीज़ों का इंट्रोडक्शन तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है, और सिर्फ जॉब करनी है, हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वेल एंड गुड है. तुम जॉब करते करते भी जो ग्रोथ लेना चाहते हो वो इवेंचुअली तुम्हें मिल जाएगी इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ. Here is a much detailed version of the future prospects available to a production and industrial engineer. For students targeting a global career, the most relevant higher studies options are MS in Operations Research, Industrial Engineering, Supply Chain Management, and Business Analytics. Among countries, the USA offers the highest earning potential. Germany offers excellent value because of low tuition and strong manufacturing industries, while Singapore is a major hub for supply chain and logistics careers in Asia. For students who want to stay in India, the most common career paths are supply chain and logistics, operational research and analytics, manufacturing and industrial engineering, and MBA-driven roles such as consulting, product management, and operations strategy. Students interested in government jobs can prepare for GATE and target PSUs like IOCL, ONGC, NTPC, and many more. They can also pursue higher studies through MTech. This was all for the future prospects if you decide to stick with the PI domain only. But let's not forget that if your heart truly desires, then
you can discover opportunities beyond whatever is mentioned here in this image, because I've seen multiple students go on to become software developers and AI engineers. So it totally depends on you, whatever you decide. So that was it about production and industrial engineering. I hope I was able to give you some clarity and you'll be able to make the right decision based on your interest and goals. All the best for that, and if you guys still have any doubts, do mention it in the comments below. Thanks for watching, guys.